I welcome you all to session number 1 of chapter 4 of Science of class 9th NCERT textbook. We will quickly try to recall what we have learned in previous classes. In previous classes, we discussed or we learned rather that atoms and molecules are fundamental units of matter. Like in biology, we say fundamental unit of life is a cell. Similarly, in chemistry, we say fundamental unit of matter is atoms and molecules. And we also learned that different atoms have different properties. That is why they lead to different states of matter. We discussed in detail. Now we will learn in this chapter structure of atom and important properties of an atom. So let us start with the first section, charged particles in matter. इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने कहा था मैटर इज मेड अप, चैप्टर 2 में मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स which we cannot see with naked eye and they are indivisible, but in later on we learned that the particles in matter are charged, and that was possible due to experiments on static electricity. One example of static electricity that you do in your classes is combing your hair, dry hair, and then picking up the paper flakes, torn paper with the help of comb due to the charge generated. Similarly, some scientists performed very significant experiments to prove that the small particles present in matter are charged. They carry charge on them. So let us talk about them. First of all, we'll talk about E. Goldstein, who in 1886 or in 19th century discovered that a new type of positively charged radiations in a gas discharge are emitted, which he named as canal rays, right? He proved that the positive charge on these canal rays shows that a positively charged subatomic particle called proton, which is denoted by P plus, is existing inside an atom. He also showed that it is heavier than electron, 2000 times heavier than electron, but equal in charge. So the charge on electrons and protons is equal in magnitude, but with opposite sign. Electron carries negative charge, proton carries positive charge. Similarly, in 1900, J.J. Thomson also identified another subatomic particle called electron in the so-called indivisible atom. अभी तक जिसको हम indivisible small particle या atom कह के पुकार रहे थे, तो इन दोनों साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया कि ये indivisible नहीं है, इसके अंदर चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. गोल्डस्टीन ने बोला कि चार्ज जो है प्रोटॉन होता है इसके अंदर, कैनाल रेस के थ्रू प्रूव किया. थॉमसन ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन नाम का नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है. और थॉमसन ने यह भी कहा कि एटम के अंदर गोल्डस्टीन द्वारा बताए गए प्रोटॉन्स तो होते ही हैं, जो मैंने डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन्स वो भी होते हैं, और इन दोनों का जो चार्ज है अपोजिट इन साइन है मगर मात्रा में बराबर है, इसीलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं. और ऑन द होल एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. प्रोटॉन्स को रिमूव करना मुश्किल है क्योंकि शायद वो बिल्कुल अंदर जाके बंद है. इलेक्ट्रॉन्स शायद बार बार घूमते रहते हैं एटम में, इसलिए उनको रिमूव करना आसान है. तो जो जे थॉमसन ने जो ये बातें बताई, इनसे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को तो फेल ही कर दिया. डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने कहा था एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इनडिविजिबल इन नेचर. ठीक है, तो देखें क्विकली क्या मॉडल उन्होंने प्रपोज किया. उन्होंने कहा कि एटम को आप क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर करो. जैसे मफिन खाते हैं आप, उसमें ड्राई फ्रूट लगे होते हैं, तो ड्राई फ्रूट को आप मान लो इलेक्ट्रॉन है, और पुडिंग में जो आटा बाकी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये मान लीजिए आप, राइट. तो इन्होंने ये सिर्फ कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज बिखरा होता है, उसके अंदर ये स्टडीड होते हैं, जड़े होते हैं, रत्नों की तरह जड़े होते हैं.
और बाकी चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज बिखरा होता है। और साथ ही फिर उन्होंने कहा ग्रीन इंक में देखिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का साइन अलग होता है, निशान साइन अलग होता है, लेकिन वो बराबर होते हैं, मात्रा में बराबर होते हैं, इसीलिए एटम ऑन द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत फेमस हुआ, आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। तो उसमें पहले हम लेट अस लर्न कि क्या एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने बहुत तेजी से मूव करते अल्फा पार्टिकल्स लिए और उनको एक गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया, और वो उसकी थिकनेस कितनी थी, 1000 एटम थिक थी, वो बहुत ही पतली, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसने एक्सपेक्ट किया जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें तो बहुत एनर्जी होगी, बहुत एनर्जी होगी, क्योंकि उनका मास भी ज्यादा है, उनका मास है 4 एटॉमिक मास यूनिट्स, क्योंकि वो डबली चार्ज हीलियम एटम्स हैं। तो तो उसको ये उम्मीद थी कि ये जो गोल्ड की जो सॉरी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो चाहे डबली चार्ज, नन पर चार्ज चाहे डबल है, हीलियम एटम से डबल चार्ज है, लेकिन इनका मास भी ज्यादा है। मास ज्यादा है तो गोल्ड के पार्टिकल्स तो हल्के हैं, तो हल्के पार्टिकल तो भारी को धक्का दे नहीं सकते, तो इसीलिए उनको उम्मीद थी कि ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, आप देखिए तीसरे कॉलम में, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स रादर बिल्कुल सीधे आर पार हो गए, स्ट्रेट लाइन में चले और गोल्ड फॉइल के इधर से आर पार, इधर से निकले उधर से पार हो गए, और कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल भी उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। और कुछ एक को रदरफोर्ड ने देखा कि हाँ थोड़े से कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे ना उनका बहुत ही छोटे, बहुत ही कम डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ, दिशा बदली। और इसी तरह उन्होंने देखा कि जो, और बिल्कुल ही ए वन इन सॉरी 1 in 12,000 करके आप माने तो, अगर 12,000 में से एक पार्टिकल समझ लो सीधा आर पार हो गया। ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट पर बेस करके उन्होंने क्या मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और तकरीबन जितना भी एटम का मास होता है, जितना भी एटम का भार होता है, किसके कारण होता है, इसी पॉजिटिव चार्ज सेंटर के कारण होता है। हमने कहा ना पुडिंग में मान लीजिए बाकी सारे में जैसे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन जड़े हुए हैं। तो रदरफोर्ड ने वो, ये तो था थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड ने अब गोल्ड वाल पत्ती वाला एग्जाम्पल किया। उसमें उसने देखा कि जो बहुत ही एक 1 in 12,000 जो थी ना, जो किरणें थी अल्फा पार्टिकल्स की, वो वापस मुड़ के आई, मेजोरिटी तो आर पार हो गई। ठीक है। यानी अगर 12,000 में एक ही वापस मुड़ी तो इसका मतलब है बिल्कुल सेंटर में जाके, यानी कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटी सी जगह है जहां पर सारा का सारा भार है, भार है तभी तो वहां पर पार्टिकल का वेट जब एटॉमिक मास था, तो इसीलिए वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर पाई, एक 1 in 12,000 को। ठीक है। इस जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने कहा 1 in 12,000 ही सिर्फ डिफ्लेक्ट हुई, उससे हमें ये पता चलता है कि जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है। ठीक है। फिर ये भी हमें पता चल गया कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, न्यूक्लियस का जो साइज है एटम के साइज के मुकाबले बहुत ही छोटा है। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इस तरह से हुआ कि अभी हमने कहा एक ऑब्जर्वेशन ये थी, देखिए वापस चलें, small angled deflections of some of the alpha particles by gold foil। बहुत ही कम एंगल से कुछ गोल्ड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुए, तो वो कुछ क्यों हुए, क्योंकि वो न्यूक्लियस है ही इतना छोटा सा,
बहुत ही छोटा है। आप ऐसे अज्यूम कर लो कि एक रिंग के अंदर आप, एक बड़ी रिंग के अंदर आप छोटी रिंग रख दो, छोटी रिंग के अंदर फिर एक रिंग रख दो, तो सबसे छोटी जो रिंग लास्ट में जो बचेगी वो न्यूक्लियस, और बाहर वाली जो रिंग है आपकी वो एटम है। ठीक है, तो आपको डेटा भी दिया हुआ है कि 10, एक के साथ आप 5 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, तो ये एटम के रेडियस से उतना छोटा होता है न्यूक्लियस। यही वजह है कि बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, उनका, उनकी चलने की, मूवमेंट की दिशा बदली। फिर इन्होंने तीसरी बात अपने मॉडल में ये कही, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर शेल्स में घूमते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे एटॉमिक मॉडल की, जिसको साइंटिस्ट के नाम के पीछे बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो अच्छा, भी एक चीज और आपको बतानी थी। जस्ट वेट, रदरफोर्ड की लिमिटेशन डिस्कस करें पहले। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की कुछ लिमिटेशंस भी थी, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लें रदरफोर्ड के मुताबिक न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं, तो घूमते 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 वो बहुत तेज चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हम तेज तेज गोल गोल घूमते हैं या कीकली करते हैं तो लोग रोकते हैं, रुक जाओ गिर जाओगे। आपने देखा ना, आप धीरे 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 कीकली डालने शुरू करते हो, बाद में आपकी स्पीड अपने आप तेज होती जाती है। ये एज ए रूल, जब आप सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हो ना, तो एक्सेलरेशन हो, तो इज बाउंड टू बी देयर, आपकी स्पीड तेज होनी ही होनी है। तो उससे क्या होता है, फिर आपकी एनर्जी जो है रेडिएट, आप एनर्जी डिसिपेट करते हो, और जो एट इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रेडिएट करेगा। कब तक एनर्जी रेडिएट करेगा? जब तक वो अपनी सारी एनर्जी रेडिएट करके वापस न्यूक्लियस के अंदर ही ना गिर जाए। तो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा तो न्यूक्लियस तो खत्म, न्यूक्लियस तो अनस्टेबल है। इसका मतलब, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप जैसे आप कीकली का एग्जांपल ले लो, या गोल गोल घूमो, सिर्फ सिंपल गोल गोल घूमो हाथ फैला के या बिना, आप देखो एक स्टेज पर गिर जाते हो, चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं। क्योंकि तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ये मान के चलें, रदरफोर्ड ने कहा, तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और तो ये बात थोड़ी गलत सी प्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो उनका तो एक्सेलरेशन तो होना ही होना है, और एक्सेलरेशन जब जब भी होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस तब तक होता रहेगा जब तक कि उनकी पूरी एनर्जी जीरो होके फिर तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ये ट्रू नहीं है। अगर ये सच होती, ये वाला सिद्धांत सच होता, तो हमारे आसपास तो हमें ना सॉलिड दिखता मैटर, ना लिक्विड दिखता, ना गैस दिखता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सॉलिड फॉर्म भी है, लिक्विड भी है, और गैस भी है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एटम इज अ हाईली स्टेबल फॉर्म। लेकिन रदरफोर्ड का अगर ये सिद्धांत मान लें तो एटम तो हाईली अनस्टेबल है। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन है। आपको हर मॉडल की लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, रदरफोर्ड से पहले हमने थॉमसन मॉडल डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड की मैंने आपको भी लिमिटेशन बताई कि रदरफोर्ड के हिसाब से एटम अनस्टेबल है, जबकि अगर ऐसा मानेंगे तो दुनिया में कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए रदरफोर्ड का तीसरा सिद्धांत तो माना नहीं जा सकता कि इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर शेल्स में घूमते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इस लिमिटेशंस के ऊपर काम किया बोर नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने ये कहा कि ये बात तो ठीक है कि वो मतलब शेल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, निश्चित पाथ होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो सारे सर्कुलर नहीं होते, वो डिस्क्रीट पाथ होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब उनमें घूमते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होता।
तो एटम जो है स्टेबल है। इसीलिए बोर की जो एटॉमिक थ्योरी है बड़े जोरों शोरों से मानी जाती है। और ये जो डिस्क्रीट जो स्पेशल सेल्स हैं डिस्क्रीट है, इनको या तो KLMN कहते हैं या 1 2 3 4 इनको नाम दिया जाता है। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ सेशन 1 ऑफ चैप्टर 4। और आज के इसमें सेशन में हमने ये जाना कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स ना सिर्फ स्मॉल होते हैं बल्कि डिविजिबल होते हैं और चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और काफ़ी साइंटिस्टों ने काम किया है इसके ऊपर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पर जो किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने हमें ये बताया कि पार्टिकल्स इन द मैटर आर charged in nature. That is a different story. The magnitude of charge on electrons and protons is equal but opposite in sign. That is why atom as a whole is electrically neutral, but otherwise the subatomic particles are charged. So we discussed the efforts carried out by Goldstein, J.J. Thomson, then Rutherford, and Bohr's atomic model. So J.J. Thomson proved Dalton's atomic theory wrong, which said that atoms are indivisible, but it said that atoms are divisible. Then after Thomson came Rutherford. Rutherford performed experiment, and then what did he say? He said that Rutherford, I have just now told you three postulates of the atomic model given by Rutherford. Atom has a पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और सारा का सारा एटॉमिक मास उसी के अंदर है। यही बात हमारे थॉमसन ने कही थी ना कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा होता है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये टैली कर रही है उससे थॉमसन से। और फिर इसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, एटम के मुकाबले न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आपको डाटा भी दिया है। और फिर रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। हाँ, लेकिन इसको जो है गलत प्रूव कर दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो उनका एनर्जी खत्म होती चली जाएगी और वो गिर जाएंगे न्यूक्लियस में और एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एटम ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, विच इज रॉन्ग। दुनिया तो एग्जिस्ट करती है, मैटर भी एग्जिस्ट करता है, एटम तो हाईली स्टेबल है। तो इसी चीज को रॉन्ग प्रूव करके बोर ने एक नया एटॉमिक मॉडल दिया। उसने बोला इलेक्ट्रॉन डेफिनेट शेल्स में तो घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन वो सर्कुलर नहीं होते जरूरी, वो स्पेशल सेल्स होती हैं, उनमें घूमते हुए वो बिल्कुल भी एनर्जी लूज नहीं करता। और उन शेल्स का नंबर है, नाम है KLMN या 1 2 3 4, right? So with that we come to an end of this session. See you in the next class, next session on this chapter. Till then, happy